What we have said, we will give 3 months total entire money and each and every account. And who made those accounts? By Pradhan Mantri's Jan Dhan accounts. That's why we could do KYC ASAP as soon as the scheme was implemented. And we are lucky we could connect that and we could see the smiles on every Marathi women's faces in Maharashtra. I think that's the very important thing. How do you see the situation changing from the Lok Sabha elections till now? Because there were so many drastic change. And even at that time, percentage-wise, BJP did not lose votes. What BJP lost was a fake narrative, lost towards the fake narrative. And what was the fake narrative? Talking about Samvidhan, talking about Dr. Babasaheb Ambedkar, who is the utmost respectful person for us and for all of us, who's given us freedom to live, who's given us freedom to think, who's given us freedom. And all that fake narrative, people, now again, I'm not just telling you as a dialogue, but I have been all over Maharashtra. My tour showed that every youngster and women I met, they said, Didi, they really made fool out of us. Now we don't want to get into the same about story and mockery of Congress and think about it. Congress always talks about mohabbat ki dukaan, but I call it Congress ki jhoot ki dukaan and fake narrative ki dukaan. Abhi wo band hone wali hai. They're going to shut their shops and will be again returning back home. This is nothing new. This is the new culture of the BJP to threaten people. This is completely against the Constitution of India. And I condemn such behaviors. As we can see, there's a lot of Sabha going on in BJP. As we can see, they have faced a huge loss in Lok Sabha. What do you think about Narendra Modi and Amit Shah taking so much of Sabha in Maharashtra? We always take it. Atiti Devo Bhava. In a vibrant democracy, everybody should participate. Yogi ji has also said he will vote BJP. Batenge to katenge. How do you look at it? It's very sad. In Maharashtra, we are a united force. This is Chhatrapati Shivaji's Maharashtra, Shahu Phule Ambedkar's Maharashtra. This divisive politics will be rejected by Maharashtra. Kolhapur BJP member of parliament, Dhananjay Manek, has said that take the photos of women who are participating. We have moved court and election commission. No, again, according to the Constitution of India, no citizen can be threatened. This proves again and again that the BJP is a party of bullies and they are against the Constitution of India and they have insulted Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar and the Constitution of India. What do you think about the results in Maharashtra? Is Mahavikas Aghadi forming the government and who will be the CM? Ram Krishna Hari. See, we are aware of the fact that the Joint Parliamentary Committee was constituted by Honorable Speaker Lok Sabha on 9th of August 2024 and the first meeting of the committee was held on 22nd of August 2024. Thereafter, in these 3 months, 25 sittings have been held, and if on an average one sitting goes for about 4 hours, then I think we have sat for more than 100 hours till now. And during these 100 hours, in these 25 sittings, we have been able to listen to huge number of organizations. In fact, I would like to inform you that so far 195 organizations from all over the country, from different states, wanted to speak before us, wanted to put forth their views before us. They gave their consent. We invited them. Out of these 195, 146 organizations have come so far and have put forth their views before the Joint Parliamentary Committee. 95,86,000 applications, petitions, suggestions, views have come either through courier or through email or in person, have reached the committee. Every application, petition, view is being considered very carefully by the Joint Parliamentary Committee. We are also going from state to state. We are listening to the state government officials. We are listening to different organizations and individuals. And many of the views are in favor of the 44 amendments that we are proposing. Many of the views are against the 44 amendments to the principal Waqf Act of 1995 that we are proposing. So I think in a highly democratic manner, the entire exercise is being done. It's a very extensive, comprehensive exercise. And being a member of the committee, I think it is a privilege for me. We are able to listen to so many number of people across the country. A couple of days back, we were in the South India. We were in different states. 2 days back, we were in Guwahati. The state government of Assam has
fully supported all the 44 amendments that have been proposed. And today we are listening to the government of Odisha people. They would be putting forth their views. Today, entire day, the hearing will go on here in Bhubaneswar. And we are expecting that 13 organizations would be coming and deposing before the committee. And around 100 individuals would come. So it's a very extensive exercise. Once we take all the concerns, all the views, then we would be shaping the bill and we will be presenting before the Lok Sabha Speaker. अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि इस देश को लूटा है और इस राज्य को लूटा, किसानों का दुख, महिलाओं पे अत्याचार और महिलाओं पे धमकी, ये करने का पाप किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने स्कीम शुरू की है और उसके बाद धमकियां, रोज महिलाओं को धमकियां दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की एक गंदी राजनीति है। उनके सांसद कोल्हापुर में महिलाओं पे जो धमकी दे रहे हैं उसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी जा चुकी है और इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आपकी महालक्ष्मी योजनाओं को बता रहे हैं कि ये चोरी किया हुआ है, पहले उस पर टिप्पणी की थी, अब कह रहे हैं कि हम 3000 दे देंगे, डबल कर देंगे। चोरी किया हुआ स्कीम बता रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ एजेंडा ही नहीं रहा, इसलिए ये राजनीति, वो जो गंदी राजनीति कर रहे हैं। और चोरी किसने क्या किया इसके बारे मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बहुत कम समय बचा है, क्या आपका अनुभवी है, क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में होने वाला है चुनाव? दुख की एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी और जो उनके मित्र पक्ष है उनके पास कुछ एजेंडा ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना सारा भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी इस राज्य का सबसे बड़ा चैलेंज है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और उस ताकत से हम उस भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ेंगे और महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार लाएंगे जो ईमानदार होगी। कश्मीर का जो 370 धारा 370 वाला जो मसला है, उसमें एनसी ने जो रेजोल्यूशन लिख रहा है, वो मुद्दा महाराष्ट्र के इलेक्शन कैंपेनिंग में किया जा क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। बीजेपी के पास कुछ एजेंडा ही नहीं है, उनका खुद का काम ही नहीं है कुछ किया हुआ, सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इकोनॉमिक इश्यूज, इसी पे कंप्लीटली फेल है ये सरकार। लोकतंत्र है, हर एक को बोलने का अधिकार है। उलेमा बोर्ड ने जो 70 मांगे, कांग्रेस पार्टी ने और एनसीपी ने क्लैरिफिकेशन दे चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की लोकप्रियता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता है वो है हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे का। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बीजेपी, शिवसेना, मन से आरपीआई सभी यहाँ समर्थन दे रहे हैं। मैं मानती हूँ कि महायुति की विचारधारा, उसी की विशेषता है। ये जो ताकत आप देख रहे हैं, जनता जानती है कि ये जो बोलते हैं करते हैं, ये देना बैंक है, बाकी सब लेना बैंक है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हम मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? कंट्रोवर्शियल नहीं है, बैकवर्ड है। अफसोस की बात है कि 15 साल एक आमदार और 10 साल एक खासदार और कोई तरक्की नहीं हुआ है। आप देखिए तो एक घर में आज भी वही परिस्थिति है जो हमने देखा है इतने साल। अभी तक प्लान्स तक सबमिट नहीं हुए हैं। मैं आपको वादा देती हूँ कि सच्चाई के साथ काम करूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है और उसी दृष्टि से हम काम करेंगे हमारे मुंबई के लिए। 3 टर्म्स यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं, उनको आपके अपोजिट लड़ने के लिए तेलंगाना से सीएम जी को बुलाना पड़ा कैंपेनिंग करने, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जनता की ताकत आप देख रहे हैं, ये जनता तय करेगी हार जीत। कोई आए प्रचार करने या नहीं करे, उससे नहीं होता है। जो काम आपने किया उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, क्योंकि वो जनता वही काम के आधार पे दिखाएंगे और वोट करेंगे 20 तारीख को। देखिए, बंगाल इसकी साक्षी है। जब बंगाल में निर्वाचन होता है, हम लोग भी देखें 2021-24 में बहुत सारे लीडर भाजपा के आ जाते हैं, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी आते हैं, विभिन्न राज्यों में जो उनके मुख्यमंत्री वो भी आते हैं।
ये इलेक्शन के दौरान आके बहुत सारे चिकनी चुपड़ी बातें करना और कुछ कुछ झूठी बातें करना, वही झारखंड और महाराष्ट्र में भी हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र ये याद रखेगी कि उनके एक निर्वाचित सरकार को भाजपा की पार्टी ने गिराया था। बीचों बीच 5 साल की जो एक निर्वाचित सरकार थी, महाराष्ट्र की जनता ने चुनी थी, उसको भाजपा ने तोड़ा और एक नया सरकार गठन किया। वो एकदम डेमोक्रेसी के विरुद्ध है। और झारखंड में भी ये कोशिश थी, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने जेल भेजा। सभी राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक लड़ाई इस जगह पहुंच गई है कि सीबीआई ईडी को व्यवहार करो या तो मुख्यमंत्री को जेल रखो, तब अगर भाजपा की जीतने की कोई संभावना हो। और इसके अलावा देश में हजारों समस्या है, वो महाराष्ट्र झारखंड में भी है। किसान खुश नहीं है, बेरोजगारी है, आप गरीब जो है वहां भी गरीब है, 100 दिन का काम के पैसे नहीं आना ठीक से, जैसे पेट्रोल गैस और डीजल के दाम कम नहीं होते हैं, और बढ़ती हुई बेरोजगारी के संग बढ़ते हुए चीजों के दाम, इन पे भाजपा की कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई बात भी नहीं आपको सुनने को देता। महाराष्ट्र की और झारखंड की सरकार जनता तय करेगी कि कैसे सरकार को चुनना चाहते हैं। की हा आपला गडी आहे, या गड्याला तुम्ही मतदान करा, हा नेहमी तुमच्या बरोबर राहील, आणि 1,00,000 मतांनी तुम्ही त्यांना विजयी केलं होतं। गेले 5 वर्ष इतक्या प्रामाणिकपणे धीरजनी काम केलंय। सतत मुंबई असो, लातूर ग्रामीण असो, मी पाहिलंय। आम्ही घरी असताना सुद्धा मला म्हणायचे, दादा मी चाललोय गावाकडे, कार्यक्रम आहे, लोकांची कामं करायची, झडतायत ते। ही जी मनाची चळवळ असते ना, की लोकांचं आपल्याला काम करायचंय, लोकांच्या डोळ्यातले अश्रू आपल्याला पुसायचे, आपल्या आई बहिणींचा जो त्रास आहे तो कमी करायचा आहे। आज आपले युवक लातूर पॅटर्न मध्ये शिक्षण घेत आहेत, पण रोजगार आहे का तुमच्या हाताला? आज रोजगार द्यायची जबाबदारी कोणाची आहे? ही सरकारची जबाबदारी आहे का तुमच्याकडे रोजगार? पिका पाण्याला भाव आहे का? अहो काय आहे की येत्या 20 तारखेला जे बटन तुम्ही दाबणार आहात ना, खरंच म्हणाले की ह्यात एक आमदार तर होणारच आहे। आता जे विरोधक आहेत ते पण आमदार आहेतच, त्यांना या बटनची गरज नाही। 2-2 आमदार तर मिळतीलच तुम्हाला एका बटनमध्ये। खरं म्हणजे ह्या वेळेस, गेल्या वेळेस 1 लाखाची लीड होती, पण ह्या वेळेस एवढ्या जोरात बटन दाबा, एवढ्या जोरात बटन दाबा की पुढच्या वेळेसचं डिपॉझिट आत्ताच जप्त झालं पाहिजे त्यांचं। की घटना सामने आई है, कब की घटना है और किन लोगों को लूटा गया? आज सुबह 7:45 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि रानी सती गेट के पास रहने वाले कमलेश अग्रवाल और उनके 2 रिश्तेदार नीलेश और दिशांक अपने घर के पास पार्किंग में खड़े हुए थे। उनके घर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तभी 2 बाइक सवार जो है उनके पास आए और उनको जो है डरा धमकाकर उनसे उन तीनों से सोने की चेन और ब्रेसलेट और अंगूठी निकलाकर ले गए। इस संबंध में जो है हमारे टीआई साहब और एसीपी साहब तत्काल मौके पर पहुंच गए हैं। फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और जो बाइक है उसके बारे में पता किया जा रहा है। तो इसमें जो अग्रिम विवेचना है और अग्रिम जो हमारी पतारसी का प्रयास है उसको किया जा रहा है। इसमें 309 और 351 3 बीएनएस में कायमी की गई है। प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए और कार्रवाई की जाए। सर ये किसी हथियार भी थे इनके पास, तो किसी तरह की इंजरी इन्होंने चोट? नहीं, कोई इंजरी नहीं है। ये तीनों जो हमारे फरियादी हैं, तीनों अपने पार्किंग में खड़े हुए थे, वहां पर आए, उन्होंने डराया धमकाया और उससे उनसे उतरा लिए, उनसे जो जेवरात थे उतरा लिए। कितनी कीमत होगी सर? ये मंत्री जी, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो प्रिमिटिव
हमारा जनजाति है उनके लिए हॉस्टल बनाना और इनका जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एजुकेशन बढ़ा है, इसीलिए आज त्रिपुरा में अनुष्ठान हुआ अभी है। उसमें 10 हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स मिला के आज उसका मैंने फाउंडेशन ले हुआ है। और दूसरा जो है आपका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एक प्रोग्राम हुआ है और वो भी हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब तक नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक देश भी डेवलप नहीं हो सकता है। इसका भी झलक हम लोग देख पाया है और मेरे ख्याल से इससे त्रिपुरा में भी इंडस्ट्री काफ़ी लोग आएंगे और उन्नति जो प्रकल्प इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से आज वहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है और मेरे ख्याल से बाहर से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब आएंगे और इससे हम लोग हमेशा कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा ये जरूर बनने वाला है। और काफ़ी इंसेंटिव्स भी हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी त्रिपुरा गवर्नमेंट से। हम लोग इंडस्ट्री पॉलिसी भी बनाए और स्वागत पोर्टल जिसमें कोई भी आए स्वागत पोर्टल में द्वारा तुरंत उसको एनओसी से शुरू करके रजिस्ट्रेशन के साथ खड़े रहेंगे वही ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे। एक और बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे का कि आरएसएस और बीजेपी से देश को खतरा है। ठीक है, ऐसा है, विचारधारा उनकी है, जिस तरह से ये बयान वे दे रहे हैं अच्छी बात है। वैचारिक मतभेद दोनों पार्टियों के है, हमारी भी वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी से है, संघ परिवार से है, तो वैचारिक मतभेद होना ठीक है, लेकिन बोलना और पलट जाना ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के चुनाव में आरएसपी पर पाबंदी की घोषणा पत्र में कहा गया और 2 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने वाबला मचाया और कांग्रेस उस पर पलट गई। तो कांग्रेस जो बोलती है उस पर टिकी रहे ना, बोलेंगे और पलट जाएंगे। हमें लगता है थोड़ा सा कांग्रेसियों के अंदर भी वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं घालमेल की परिस्थिति है, इसलिए बोलते एक हैं करते एक हैं, बोलेंगे फिर पलट जाएंगे, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल, बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि फिर से वोट जिहाद हो रहा है, वोट जिहाद के लिए पैसा आ रहा है, ये अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, क्या वाहियात बातें हैं। इस देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, कौन किसे वोट दे ये उसका अपना मत है। हर व्यक्ति वोट देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और होना भी चाहिए, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। अगर कोई आपको वोट नहीं दे रहा है या कोई किसी दल को वोट दे रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं इस पर मंथन करना पड़ेगा। आपका कौन सा ऐसा काम है, कौन सा क्रियाकलाप है जिसके कारण लोग आपके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। आपको वोट ना मिले तो लोगों को भड़काने वाले बयान देने से कभी भी फायदा होने वाला नहीं। क्यों वोट लोग नहीं देते हैं और कैसे लोगों का वोट मिले इस पे ध्यान देने के बजाय अलग तरह से उसको प्रचारित करने से उनका नुकसान ही होगा। और इस तरह की वाहियात बातों पे हम तो ध्यान नहीं देते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अगर बयानबाजी करते रहेगी तो उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। देश के सभी नागरिक अपनी मर्जी से वोट देते हैं। झारखंड में तो विकास के नए प्रतिमान डबल इंजन की सरकार ही अब स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और हेमंत सोरेन जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की सरकार का कुशासन, उनका भ्रष्टाचार, उनकी वादा खिलाफी और अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो घुसपैठिए बुला रखे हैं उनने, उसके कारण जनता बुरी तरह नाराज है। परिवर्तन की लहर चल रही है। अब पूरे विश्वास के साथ में ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी मिलकर एनडीए गठबंधन में अब सरकार बना रहा है। हम शानदार बहुमत से वहां विजय हासिल करेंगे और भ्रष्टाचारी सरकार को जनता उखाड़ के फेंक देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं जाति की बात कर रहे हैं झारखंड में भी और महाराष्ट्र में। पहले राष्ट्र फिर कास्ट। राहुल गांधी कितना बांटोगे भाई?
कितना बांटोगे? यही तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं, ये भेदभाव पैदा करने वाले लोग हैं। ये देश के हितैषी नहीं है वोटों की खातिर। ये विदेशों में भी भारत की आलोचना करते हैं। ये कभी भी भारत के हितैषी नहीं हुए। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, इस देश ने हमेशा सबको समान स्थान अपने हृदय में दिया है। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। और सामाजिक न्याय भी, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या सामान्य वर्ग के गरीब, अगर किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ये तोड़ने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस के नेता जिस तरह का बयान देते हैं, इन्हें अपने शब्दों पर संयम बरतना चाहिए। मुझे लगता है जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं तब से कांग्रेस के नेता बौखला गए, और कांग्रेस के नेता ही नहीं, इंडी गठबंधन के घटक दल। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसमें कोई जो है समस्या नहीं है, परिवार हो या समाज हो। और मुझे लगता है कि झारखंड के चुनाव की स्थिति मैंने जो देखी है, बांग्लादेशी घुसपैठिए मापरा के आदिवासियों की बहन बेटियों के साथ में ये शादियाँ करके और जो है उनके आरक्षण का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार का काम, तो ये उनको जो है बढ़ावा देने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ये उनके वोटर के रूप में बनेंगे, इसलिए उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। जी सर, समाजवादी पार्टी की क्योंकि झारखंड के लिए आज रोटी, बेटी और माटी का एक भीषण संकट खड़ा हो गया है। बहनों और भाइयों, एक और हमारा देश भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत है तो समृद्धि की ओर भी अग्रसर हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सुशासन का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत का अद्भुत संगम एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर वह विकास, वह सुशासन, वह समृद्धि, वह सुरक्षा झारखंड के बॉर्डर में आकर के अटक करके रह जाती है। कारण है यहां पर जो सरकार कार्य कर रही है उसके एजेंडे में विकास नहीं है, उसके एजेंडे में विरासत नहीं है, उसके एजेंडे में समृद्धि नहीं है, उसके एजेंडे में सुशासन नहीं है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों का एक एक मकान बन गया, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के सिलेंडर और एक एक शौचालय पहुंच गया, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोग देश के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। हर वर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क देंगे। 80 करोड़ लोग पिछले 4.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने घोषणा कर दी है
अगले 5 साल तक ये जारी रहेगा। में एकदम माहौल जो है इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में है। इस बार पुनः हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। कई सरकार ने योजनाएं जो चलाई हैं जो लोगों के लिए लाभकारी साबित हुआ है, लोग पसंद कर रहे हैं, कामयाब हुआ है और लोग पुनः चाहते हैं जो काम करने वाली सरकार जो है वो दोबारा है, ना कि नफरत फैलाने वाली। अमित शाह जी का